Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to MBBS third year students. Today is the last lecture of our mycology unit and we will be starting and finishing the opportunistic mycosis part 2 along with the recap of mycology that has been covered so far by ourselves. So starting with the name of Allah. Today's learning outcomes will be, by the end of this lecture, we will be able to have a look on patients of rhizopus and mucor infections. And secondly, we will have a look on a patient of pneumocystis pneumonia. We will discuss the above organisms one by one in all of the aspects, and in the end we will be able to solve certain MCQs, and part 2 will be consisting of recap of mycology. So this is the clinical scenario number 4 in continuation with the first lecture of opportunistic mycosis. On that day we have come across to examine 3 patients in the outdoor. हमने उस दिन 3 पेशेंट्स को हमने एग्जामिन किया था, उनको डिस्कस किया था. So today coming to the 4th patient and he is suffering from rhizopus and mucor infections. अब mucor और rhizopus ये दोनों क्या करते हैं? They causes mucormycosis or zygomycosis or phycomycosis. This is the name of the disease. They are not dimorphic. इसका क्या मतलब है? Dimorphic थे जो 2 फॉर्म्स में अकर होते थे. In environment they were occurring as molds and in the tissues they were occurring as yeast. तो ये इनमें कोई dimorphism नहीं होता. How do they transmit or spread? The organism are transmitted by airborne asexual spores होते हैं जो कि sporangiums में होते हैं. आप ये देखिए राइट साइड पे जो पिक्चर है ऑन द राइट साइड द लास्ट पिक्चर, ये स्पोरेंजियम है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं. सो दे आर ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न एसेक्सुअल स्पोर्स. उसके अलावा प्रोलिफरेट ये कहाँ पे करते हैं? ये प्रोलिफरेट करते हैं इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं. और कौन सी ब्लड वेसल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं किस किस एरिया की? पैरानेजल साइनसेस की, लंग की और गट की. उसके बाद ये इन्फेक्शन कर देते हैं वहाँ पे और नेक्रोसिस कर देते हैं जो कि सराउंडिंग टिश्यू जो होती हैं ब्लॉक्ड वेसल्स के इर्द गिर्द. नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं इनके, आगे जाके देखेंगे, पीछे भी हमने देखा था. उसके बाद इरेगुलर वॉल्स होती हैं एंड स्पोरेंजियम. दे कंटेन अ स्पोरेंजियम इन विच द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रेजेंट. Walls of blood vessels, they proliferate in the walls of blood vessels and they cause infarction, necrosis. कहाँ का करेंगी? जो टिश्यू होगी उसके blood vessels के आसपास. And remember the patients with low immunity such as diabetic ketoacidosis, burns के patient आपके पास आए हैं, ल्यूकीमिया से सफ़र कर रहे हैं, कोई organ transplant है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो ये ज़्यादा particularly susceptible और prone होते हैं. They cause another disease that is called as rhinocerebral mucormycosis. What happens in this disease? The mold spores sinus में होते हैं, mold के spores, right? Sinuses में होते हैं, वहाँ पे spores होते हैं, germinate करते हैं, they form hyphae and then they invade the blood vessels. और blood vessels उनको invade करते हैं. Sinuses they are lying in the periphery or in the vicinity of the brain. ये हमारे ब्रेन के आसपास होते हैं साइनसेस. तो वहीं पे स्पोर्स जो हैं वो मोल्ड के स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, दे फॉर्म हाइफी एंड देन दे इन्वेड द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द ब्रेन. Mucormycosis, let's have a look at this picture. Mucor, rhizopus, mucor, absidia. The hyphae vary in width and they branch off at 90 degree. 90 degree पे इनकी जो branching होती है वो होती है. और उसके अलावा ये हायर इंसिडेंस होता है, अभी हमने पढ़ा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स. हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट्स? लैब डायग्नोसिस करनी है, कैसे करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट? बायोप्सी स्पेसिमेन में जब हम बायोप्सी लेते हैं तो द ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी द ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिकली. और किस तरह नज़र आएंगे? नॉन सेप्टेड हाइफी नज़र आएंगे, इनकी ब्रॉड इरेगुलर वॉल्स होंगी एंड ब्रांचेस होंगी.
ब्रांचेस का कैसे होंगी, 90 डिग्री के ऊपर वो डाइवर्ट कर रही होंगी। जब कल्चर लगाते हैं हम, कल्चर में सेबरॉड्स एगर पे करेंगे कल्चर, एंड दे विल बी शोइंग अस कॉलोनीज विद स्पोर्स, और स्पोर्स कहाँ पे होंगे, उनके स्पोरेंजियम में होंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर डिफ़िकल्ट टू कल्चर। ऑर्गेनिजम्स ये इतनी आसानी से कल्चर नहीं होते क्योंकि सिंगल होते हैं और इनका सेल की जो लेंथ और विड्थ होती है वो बड़ी लॉन्ग होती है, तो अगर डैमेज हो जाए सेल के किसी भी पार्ट को तो वो ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए दे आर डिफ़िकल्ट टू ग्रोथ। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान, हम क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइन कॉज की, जो भी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है। उसके अलावा वी कैन एडमिनिस्टर एम्फोटेरिसिन भी, और सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, सर्जिकली एक्साइज कर सकते हैं नेक्रोटिक टिश्यू को। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी देंगे जिन पेशेंट्स में अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है। एंड इन एडिशन टू ऑल दिस, we can prescribe posaconazole in our patient that is suffering from mucor or rhizopus, and the disease is called as zygomycosis, phaeomycosis or mucormycosis. Coming to the fifth case, that is the last case of your opportunistic mycosis, opportunistic mycology का last case है, and then we will be moving to our next unit. The case name is pneumocystis pneumonia. A patient comes to you और उसको नमोनिया हुआ हुआ है। द कॉजेटिव एजेंट इज न्यूमोसिस्टिस। न्यूमोसिस्टिस की कितनी स्पीशीज़ हैं आगे जाके देख लेते हैं। द पेशेंट इज कंप्लेनिंग टू यू ऑफ हैविंग फीवर एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिस्निया। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसको सांस फूल रहा है, थोड़ा सा भी वो बैठा हुआ है उठ के चलता फिरता है तो उसका सांस फूलना शुरू कर देता है। खांसी उसको हो रही है जिसमें कोई सिक्रीशंस नहीं है, कोई बलगम नहीं है, एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर्स। जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो यू हेयर रेल्स। नाउ व्हाट आर रेल्स, मेरा ख्याल है अभी देख लेते हैं ये रेल्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रखी हुई है, लेट्स सी एंड नाउ लिसन। So right now we have come across to examine a patient who is suffering from pneumonia. Causative agent यहाँ पे होगा pneumocystis, और उसके बाद उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी वो फीवर था, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड डिस्निया, एंड हेयर वी जस्ट हर्ड हाउ द रेल्स अपीयर। आप देखें कि रेल्स जो हैं वो किस तरह अपीयर हो रही हैं, कौन से फेज में, इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी, और ये यूट्यूब का लिंक है। अच्छा, जब हम इसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सो सी देयर विल बी ग्राउंड ग्लास इनफिल्ट्रेशन। नाउ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द दिस पीपीटी, लेफ्ट साइड पे देखें नॉर्मल लंग, how can you see the normal lung, and this is the infection of lungs by pneumocystis on the right side. नाउ न्यूमोसिस्टिस नमूनिया की एक जल्दी से समराइज कर लेते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई। रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, स्पेशली HIV इन्फेक्शंस, और आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून डिजीज हुई हुई हो जिसमें इम्यूनिटी वैसे ही बंदे की लो होती है, और ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा, he or she is on cytotoxic drugs or corticosteroids, and the patient और अगर कोई प्री मेच्योर इन्फेंट है, मेल न्यूरिश चिल्ड्रन है जिसमें अगेन इम्यूनिटी लो होगी,
and the patient will be coming to you with fever, cough, difficulty in breathing और dyspnea, chest pain होगी उसको, सर्दी लगेगी, chills होगी और myalgia and tiredness होगी. Here comes the life cycle. लाइफ साइकिल में अब आप ये देख लें, ए सेक्शुअल फॉर्म होती है, सेक्शुअल फॉर्म होती है. ये सिर्फ आपको बस एक आइडिया दिया है कि किस तरह होती है. कॉन्जुगेशन है, प्री सिस्ट फॉर्म है, अर्ली सिस्ट बन रही है, मैचुरेशन है और फिर एक्सिस्टेशन में वो बाहर निकल जाती है. इसकी हम डिटेल बेशक नहीं पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द लाइफ साइकिल. न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई और न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई, नाउ व्हाट आर दे? अब जो इनकी क्लासिफिकेशन है और लाइफ साइकिल है ना इनकी, दैट इज़ स्टिल अनक्लियर, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो इनके ये बताते हैं कि कुछ लाइक टॉक्सोनोमिस्ट जो हैं 2002 से ऑनवर्ड्स इन्होंने इसको रिक्लासीफाई कर दिया. एक तो ये याद रख लीजिए कि न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई is the species that is only used to describe the rat species, जो कि सिर्फ rats में होते हैं. Pneumocystis jirovecii is the species that is infecting the human beings. एयरबॉर्न इन्हेलेशन से ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं. अभी हमने देखा था इसको. इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट करेंगे and there will be huge number of plasma cells, इसीलिए इसको हम प्लाज्मा सेल नमूनिया भी कहते हैं. द पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम डिस्निया, अभी हमने बात की थी, एंड द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स, उनमें न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई जो है वो नमूनिया भी कॉज कर सकता है और उसके अलावा लिवर, लंग्स और बोन मैरो को भी इन्वॉल्व करता है. सो नंबर वन डिफरेंस तो आपने ये याद रखना कि कैरिनाई जो है वो रैट स्पीशीज़ है और जो जिरोविसाई है दैट इज़ अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स. अब ये नमूनिया करता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में करता है. दिस वी हैव बीन कवरिंग सो फार. नाउ द क्वेश्चन अराइज वेदर इट इज़ अ यीस्ट और अ प्रोटोजोआ. अब इसमें ये एनालिसिस किया गया राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग का, और उसके जब ये 1988 में हुआ था तो इंडिकेट इसने किया कि न्यूमोसिस्टिस शुड बी क्लासिफाइड एज अ फंगस. इसीलिए हम इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ कवर कर रहे हैं, जबकि हमारी लेवेंसन में ये दो जगहों पे दिया हुआ है. माइकोलॉजी के यूनिट में भी है, लाइक इट इज़ क्लासिफाइड एज अ फंगस, और ये पैरासाइटोलॉजी के यूनिट में भी है. तो हम इसको यहीं कवर कर लेंगे ताकि पैरासाइटों में हमें ना करना पड़े. अब जब राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग हुई, इसका डीएनए वगैरह जो है वो उसका एनालिसिस किया गया, तो देखा गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वेरियस एंजाइम्स, इन सब ने सपोर्ट किया दैट इट इज़ अ फंगस. लेकिन अगला क्वेश्चन ये हुआ कि इसके अंदर एर्गोस्टेरॉल होती ही नहीं है. इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एर्गोस्टेरॉल नहीं है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है. अब ये कन्फ्यूजन दोबारा हो गई कि अगर ये इस तरह का है तो इट मस्ट बी अ प्रोटोजोन. टिश्यूज़ में ये सिस्ट के तौर पे अपीयर होती है, जो कि सिस्ट रिजेंबल करती हैं विद दैट ऑफ प्रोटोजोआ. तो अगेन ये एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि इट शुड बी क्लासिफाइड इन द प्रोटोजोआ. उसके अलावा एक और फाइंडिंग आई कि इट इज़ नॉट ग्रोन ऑन फंगल मीडिया. जो फंगल मीडिया होते हैं उस पर ग्रो भी नहीं करता और एंटी फंगल थेरेपी इस पर काम भी नहीं करती. So there is a lot of debates in these कि whether it has to be classified in the fungi or whether you have to reclassify it as a protozoa. Animals कौन कौन से होते हैं जिनमें ये it can be found in domestic animals, जैसे आप ये कह लीजिए कि sheep हो गई, goats हैं, horses हैं. उसके अलावा rodents में भी होता है, लेकिन animals they are not a reservoir for human infections. अब आखिरी बात इसकी ये कि दे हैव गॉट अ मेजर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स. इनके ऊपर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और जबकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सिग्निफिकेंट एंटीजेनिक वेरिएशन करती हैं. और सिग्निफिकेंट एंटीजेनिक वेरिएशन जो होती है वो एक और हमारे ऑर्गेनिज्म पे पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी. Now this pneumocystis species they have multiple genes. इनके पास बहुत सारी genes होती हैं जो कि सारी ये जो इनकी surface glycoproteins हैं उनको encode कर रही होती हैं. But remember, only one is expressed at one time. और ये जो programmed rearrangement का ये सारा process था, it was first observed in Trypanosoma brucei. Coming to our ultimate goal, how will you diagnose and treat the patient? अब डायग्नोसिस कैसे करनी है पेशेंट की और ट्रीटमेंट कैसे करनी है.
अब लैब डायग्नोसिस में हम स्पेसिमेन लेंगे ऑब्वियसली, और स्पेसिमेन कौन कौन से ले सकते हैं? लंग टिश्यू ले सकते हैं, ब्रोंकियल लिवाज करेंगे, लंग टिश्यू लिवाज स्पेसिमेन लेंगे, या ओपन लंग बायोप्सी लेंगे, एंड सी हाउ द सिस्ट विल बी फॉर्म्ड। दीज आर द टिपिकल सिस्ट, और ये हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे देखेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, स्पूटम इसमें नहीं लेते, स्पूटम इज़ नॉट दैट मच सूटेबल। सिस्ट जो होती है वो कैसे विजुलाइज होती है? जिम्सा स्टेन कर सकते हैं या मेथानामीन सिल्वर स्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, ये भी यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए। ऑर्गेनिज्म, अच्छा ग्राम स्टेन जो है वो उसके साथ इतना अच्छा स्टेन नहीं होता, इसलिए हम इसमें जिम्सा और मेथानामीन सिल्वर यूज़ करते हैं। PCR is also being used, and the treatment consists of trimethoprim and sulfamethoxazole combination. Coming to our second part, that today's learning outcome was to solve a few MCQs. Coming to our first MCQ, a little girl is presented with a bald spot on the scalp. ये इसके स्कैल्प है और यहाँ पे ये सारे जो बाल हैं ये यहाँ से गायब हुए हैं. Her mother indicates and tells you that her daughter slept with a newly acquired puppy. उन्होंने एक पपी लिया है जिसके साथ वो बच्ची रात को सो रही. The best appropriate procedure for immediate diagnosis. अब वो आपके ऑफिस में आई है, आपके आउटडोर में आई है मदर अपनी बच्ची को लेके, जिसके ये सर पे आप देख रहे हैं बाल्डनेस का एक पैच अपीयर हुआ है. नाउ व्हाट इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर? आप उसी वक्त क्या करें? Either you are going to culture the skin scrapings on Severod's dextrose agar, or you will detect the antibodies to dermatophytes by latex agglutination. You will go for gram stain of the skin scrapings, or will you order a PCR, or will you examine the patient with a wood lamp to detect fluorescence. So you have to brainstorm on this question कि जब इस तरह का बच्चा आए और आपके ऑफिस में या आउटडोर में आया है तो what is the immediate diagnostic procedure. Coming to our question 2, a patient was treated for squamous cell carcinoma of the lungs और उसको नमूनिया हो जाता है. When you cultured the sputum sample on routine lab media at 37 degrees Celsius, तो उसने क्रीम कलर्ड कॉलोनीज ग्रो की विद इन 24 आवर्स, और कैरेक्टरिस्टिक सेल्यूलर ग्रोथ रैबिड प्लाज्मा में ऐसी हमें दिखाई गई. द पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद, तो यहाँ पे पेशेंट किस तरह का आया है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था, उसको ट्रीट किया गया और उसे नमोनिया हो गया. When you took the sputum sample and you cultured it on a routine lab media at 37 degrees Celsius, तो वहाँ पे cream colored colonies appear हो गई 24 hours में. Next देखते हैं कि जब rabbit plasma या horse plasma लिया गया तो उसकी growth कैसी आई. Now see, this is the growth in the rabbit plasma. So the causative agent here is Aspergillus flavus है, Candida albicans है, कॉक्सीडायोआयोडीज इमिटस है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स है, या न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई है. This is the characteristic picture of process that is formed by one of the most common fungi, and those fungi are present as a part of the normal flora on our skin and on the skin surface. So let's see that are we able to answer this question or not. So winding up with today's part 1 of the session, that consisted of, we had a look on the patients of Rhizopus and Mucor, and we tried to have a look on the patient of Pneumocystis pneumonia. We discussed the above organisms, we did 2 MCQs, and now we will be moving to the recap of mycology. With this is the end of part 1 of today's lecture, and the lecture is dedicated to my mentor and a very motivational personality of Pakistan, I must say, and he is the worthy Mr. Qasim Ali Shah Sahab. Thank you so much, and let's move to the next part.